Hello and welcome to ITU Bridge IAS. In this video, we will discuss about the corporatization of Ordnance Factories Board. क्या गवर्नमेंट इन डिफेंस कंपनीज को सेल कर रही है? This topic is important for the GS paper 3 in effects of liberalization on Indian economy or impact of industrial policy. Before we move on to our topic, we are bringing up political science, history and geography optional courses. Political science का course already start हो चुका है from 1st of June, but if you want to join, don't worry, backup lectures will be provided. And for the courses on history and geography, you can log on to our website www.edubridgeias.com for more details. तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ. Recently, Union Cabinet has approved the plan to corporatize the Ordnance Factory Board. इससे पहले last year in July 2020, Cabinet Committee on Security has approved the corporatization of Ordnance Factory Board. And tell me in the comment box who is the chairperson of कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी. इससे पहले वी मूव ऑन टू नो अबाउट द न्यू स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड. लेट अस नो अबाउट व्हाट इज दिस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड. ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड इज अ अम्ब्रेला बॉडी that for ordnance factories and related institution, and it is a subordinate office under Department of Defense, production of Ministry of Defense. इसकी हिस्ट्री गोज बैक टू बिफोर इंडिपेंडेंस एंड फर्स्ट द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड वाज फर्स्ट सेटअप बाय ब्रिटिश इन 1775 इन फोर्ट विलियम, कोलकाता. इन 1787 एक गन फैक्ट्री इस्टेब्लिश की गई थी इशापुर, वेस्ट बंगाल में, जिसमें प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था 1791 में. टिल इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स ने इंडिया में 18 सच ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की थी, जिसके बाद आफ्टर द इंडिपेंडेंस दिस नंबर हैज़ इंक्रीज्ड टू 41. ये व्हाट डज these ordnance factories provide? Along with these 41 factories, 9 training institutions, 3 regional marketing centers and 5 regional controllers of safety are also come under ordnance factory board, जो ये प्रोवाइड करते हैं कि a broad and versatile production base with multi-technology capability, state-of-art manufacturing facilities, large reservoir of skilled and professionally qualified manpower, strict adherence to quality standard, original as well as adaptive research and development, project engineering capability, a strong base for industrial training facility, and also a ready market because of location across the country. ये क्या क्या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं? They manufacture civilian and military grade arms and ammunitions, explosives, propellant and chemical for missile systems, military vehicles, armored vehicles, optical devices, parachute support equipment, troop clothing and general store items. अब देखते हैं कि what is the new structure that has been approved by the government, the Union Cabinet. इस नए स्ट्रक्चर के अंदर these 41 factories will be dissolved और इनकी जगह पे आएंगे 7 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. ये जो 7 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होगी, दे विल बी 100% ओन्ड बाय गवर्नमेंट. मतलब इनमें 100% हिस्सेदारी होगी गवर्नमेंट की. ये 7 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है. इनको डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा, और ये ग्रुप क्या होंगे? एम्यूनेशन एंड एक्सप्लोसिव ग्रुप, सेकेंड होगा व्हीकल ग्रुप, फिर थर्ड होगा वेपन्स एंड इक्विपमेंट ग्रुप, फोर्थ होगा ट्रूप कंफर्ट ग्रुप, फिफ्थ होगा एंसिलरी ग्रुप, सिक्स्थ होगा ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप एंड लास्ट होगा पैराशूट ग्रुप. दीज एंटिटीज विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट वर्टिकल्स ऑफ प्रोडक्ट. मतलब एक ही टाइप के जो प्रोडक्ट होंगे ये ग्रुप मैन्युफैक्चर करेंगे. जैसे कि
एमिनेशन एक्सप्लोसिव ग्रुप विल मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट एमिनेशन फॉर वेरियस कैलिबर्स। इसके साथ व्हीकल ग्रुप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा टैंक्स, ट्रॉल्स एंड माइंड प्रोटेक्टेड इक्विपमेंट, माइंड प्रोटेक्टेड व्हीकल्स, वेपन्स एंड इक्विपमेंट ग्रुप प्रोड्यूस करेगा स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज कैलिबर गन्स फॉर सिक्योरिटी फोर्सेज। ट्रूप कंफर्ट ग्रुप विल मैन्युफैक्चर यूनिफॉर्म्स एंड स्पेशलाइज्ड गियर फॉर ट्रूप्स। इसके साथ ही लास्ट ईयर देयर वाज जब यूनियन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इस प्रपोजल को अप्रूव किया था, देयर वाज अ प्रोटेस्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज ऑफ दिस ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड। तो इसको अकोमोडेट करते हुए गवर्नमेंट ने ये किया है, एक प्रोविज़न किया है कि फॉर द पीरियड ऑफ 2 years जो भी एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड के, इनको डेप्यूटेशन पर भेजा जाएगा नई कॉरपोरेट एंटिटीज़। इनकी सर्विस कंडीशन में कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे। एंड ऑल्सो द पेंशन लायबिलिटीज ऑफ दीज एम्प्लॉयज़ एंड रिटायरीज विल बी कंटिन्यू टू बी बोर्न बाय द गवर्नमेंट। इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा? इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कॉन्स्टिट्यूट किया गया था लास्ट ईयर, विच विल ओवरसी द बोर्ड्स कॉर्पोरेटाइजेशन एंड विल टेक डिसीजन ऑन रिलेटेड मैटर्स। अब आते हैं कि व्हाट आर द रीजंस फॉर कॉर्पोरेटाइजेशन। द पहला रीज़न है सब स्टैंडर्ड क्वालिटी। देयर हैव बीन कंप्लेंट्स फ्रॉम डिफेंस फोर्सेज की जो भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं बाई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स, उनकी क्वालिटी इज़ वेरी सब स्टैंडर्ड। लास्ट ईयर न्यूज़ रिपोर्ट्स आई थी जिसमें इंडियन आर्मी ने अपने इंटरनल असेसमेंट में पाया था कि मैनी ऑफ द एम्यूनेशंस एंड आर्मामेंट्स आर फॉल्टी, और जिसके कारण बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हुई हैं और ऑल्सो देयर हैज़ बिन वेस्टेज ऑफ पब्लिक फाइनेंस। इसी न्यूज़ रिपोर्ट में ये क्लेम किया गया था कि over the previous 6 years there has been 403 such instances जिसमें 27 soldiers की डेथ हुई है एंड there has been also a loss of 960 crore rupees to the exchequer। मतलब 27 soldiers की डेथ is a very big loss। इसके बाद अगला रीज़न है द कैग रिपोर्ट इन 2000। द Comptroller and Auditor General is repeatedly raising questions about the quality of the product supplied by the Ordnance Factory Board and also its overall performance in its report। इस रिपोर्ट में आगे कहा गया था कि ओवरहेड्स क्या होते हैं? दैट एक्सपेंस दैट डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट डायरेक्टली टू द प्रोडक्ट एंड सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, और अगर कहीं आने जाने के लिए कोई व्हीकल यूज़ किया जा रहा है बाय द एम्प्लॉइज़ तो उसका पेट्रोल और डीजल का खर्चा, दिस विल ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट ओवरहेड। ये ओवरहेड कॉन्स्टिट्यूट 33% ऑफ ओवरऑल अलॉटेड बजट फॉर दैट ईयर, दैट इज़ 2019। इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है कि जो सुपरविजन कॉस्ट होती है या फिर इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनकी वजह से ओवरहेड इज़ वेरी लार्ज। मतलब कंपनी अगर 100 रुपये का बजट है उसमें से 33% तो प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस में भी नहीं जा रहा है। इसके साथ ही एक और इशू कैग रिपोर्ट में उठाया गया था कि डिलेड प्रोडक्शन। The ordnance factories are achieving their product targets for only 49% of the items, or about 52% of the was inventory in hand। मतलब इन्वेंट्री क्या होती है? जो भी प्रोडक्ट के लिए मैन्युफैक्चर करना है या उसमें जो भी रॉ मटेरियल लगेगा उसको परचेज करके अपने स्टोर में रखना। तो मतलब 52% इज स्टोर इन हैंड। मतलब अगर कोई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एक व्हीकल बना रही है, जैसे कार बना रही है कोई, तो उसके अगर टायर इसको बनाने में अगर 30 दिन का समय लग रहा है
और इसमें टायर की ज़रूरत है ऑन 25th डे। अगर फर्स्ट दिन ही टायर खरीद के रख दिए जाएँ तो इन 25 दिनों में दिस इज़ कॉल्ड वर्क इन हैंड इन्वेंट्री। तो 25 दिनों तक इन टायर को स्टोर करके रखना पड़ेगा और इसको कॉस्ट भी पहले ही लग जाएगी। तो दिस टाइप ऑफ इन्वेंट्री इज़ अबाउट 52%। इसके बाद अगला रीजन जो है कॉर्पोरेटाइजेशन का, दैट इज़ आत्मनिर्भर भारत अभियान। इट कॉल्स फॉर कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड टू इम्प्रूव autonomy, accountability and efficiency in ordnance suppliers, and also to make India self-reliant in defense hardware production. अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी बाई सीपरी, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसमें कहा गया था कि इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर एंड ऑल्सो सेकेंड लार्जेस्ट importer of arms in the world। तो you can see here कि सेल्फ रिलायंस कितना इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस न्यू स्ट्रक्चर। दिस न्यू स्ट्रक्चर विल हेल्प इन ओवरकमिंग द शॉर्टकमिंग्स इन एग्जिस्टिंग सिस्टम्स, जैसे कि इनएफिशिएंट सप्लाई, एंड ऑल्सो इट विल प्रोवाइड इंसेंटिव टू become competitive and explore new opportunities in market। ये जो नया स्ट्रक्चर है दैट विल ऑल्सो प्रोवाइड ऑटोनॉमी टू हेल्प इम्प्रूव अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, और इसके साथ ही it will also transform these companies into productive and profitable assets and also deepen their specialization in product range। कैसे प्रोडक्ट, there are 7 groups, कंपनीज को 7 DPSUs में बांटा जाएगा जो विल फोकस ऑन ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट। तो दिस विल इंक्रीज देयर स्पेशलाइजेशन। इट विल ऑल्सो एनहांस कॉम्पिटिटिवनेस एंड इम्प्रूव द क्वालिटी एंड कॉस्ट एफिशिएंसी, एंड ऑल्सो अगर भारत सेल्फ रिलायंट होता है तो देन देयर विल बी एन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट्स। अब क्वेश्चन आता है कि वेदर एवरीथिंग विल बी अ स्मूथ सेलिंग फॉर द गवर्नमेंट। नहीं, देर आर एप्रीहेंशंस अबाउट दीज मूव्स। पहला एप्रीहेंशन इज दैट अमंग एम्प्लॉयज़ की इंस्टेड ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन दिस विल लीड टू प्राइवेटाइजेशन, मतलब ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ दिस कंपनीज विल मूव इनटू द हैंड्स ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स। इसका जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि इट हैड मेट विद द स्टीप रेजिस्टेंस फ्रॉम वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़ लास्ट ईयर। इसके साथ ही और एप्रीहेंशन है कि बिकॉज ऑफ ग्रेटर ऑटोनॉमी एंड लेसर गवर्नमेंट कंट्रोल देयर आर फियर ऑफ जॉब लॉस अमंग एम्प्लॉयज़। एक और एप्रीहेंशन इज बीइंग रेज्ड कि the companies will not be able to survive the unique market environment for defense products। यूनिक कैसे होता है? बिकॉज ऑफ अनस्टेबल डिमांड एंड सप्लाई डायनामिक्स। सप्लाई में बहुत टाइम भी लगता है, एंड ऑल्सो देर आर रेगुलर R&Ds एंड देर इज नो कॉन्स्टेंट डिमांड फॉर डिफेंस प्रोडक्ट्स। Based on our discussion, let us discuss this question that you have to attempt. The recent decision of the cabinet to corporatize the Ordnance Factories Board is a significant step towards transformation of defense production in the country. Discuss. तो इसके introduction में आपको what will you write? You can write about the report by SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute। इसकी जो रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर, थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर एंड सेकंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर। इसके बारे में आप लिख सकते हैं, देन इन द बॉडी पार्ट यू हैव टू राइट अबाउट व्हाट आर द रीजंस एंड व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज इनिशिएटिव्स, एंड इन द कंक्लूजन you can provide the solutions or any measures that you want to provide on, then finish this conclude this answer with
linking it with Atmanirbhar Bharat Abhiyan. If you can join our Telegram channel at edubiz_ias to attempt daily quiz or to get PDF of this material, and also to get regular updates of our various other initiatives. I hope that you would have learned about the corporatization of this ordnance factory board, and any doubt of your any of your doubt would have been cleared by now. Thank you very much.